Hello viewers, in this video we will cover Python language, basically the theoretical portion of Python language, okay, according to or on the basis of 9th and 10th class. So what is Python? Basically it is a programming language. What is programming language? A language which is formal language comprising a set of instructions that produce various kinds of output, okay. The language which include set of instructions through which we can get output on the basis of software, on the basis of web development, okay, like these. Why we are using programming languages? For web development, games development, mobile development, softwares, web pages, etc. Okay, so come to the topic Python. What is it? Python is a programming language. It is clear now. Python. One more thing, students, nowadays according to survey till February 2019, Python is on third rank. First is on Java, second is on C, third is on Python. Why what is the need of to learn Python? Python is must for students and working professionals. Why? To become a great software engineer, especially when they are working in वेब डेवलपमेंट डोमेन. जिन स्टूडेंट्स को या जिन व्यूवर्स को अपने लाइन चूज़ करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ, तो उनको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ओके, अच्छे से आने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और उसको एग्ज़ाम दे दिया और कवर हो गया. नो, ये एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है बेटा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए. 9th CBSE के अकॉर्डिंग जो पाइथन लैंग्वेज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकॉर्डिंग टू CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट्स वाई इन +1 +2 इट कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू CBSE they want that students get to know at least introduction of Python. ओके, दैट्स वाई 9th और 10th में पाइथन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और वेरी स्मॉल लेवल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हैं, ओके, इम्प्लीमेंट किए हैं, जो हम फर्दर प्रैक्टिकल पोर्शन में करेंगे. इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे. ओके, सो गेट टू नो व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन और व्हाट इज़ द नीड ऑफ टू लर्न पाइथन. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड फोकस ऑन लैंग्वेज which is very important nowadays. So Python is a general purpose interpreted, interactive and object oriented language. General purpose, what is general purpose? Normal, whatever we will develop. Interpreted means without compiling our program will run. Interactive means which is directly interact with user. And object oriented which works on objects, classes, procedures and fields. Okay, so it is also a high level language. As you know, computer are divided into two types of languages, high level and low level. लो लेवल फर्दर मैं पहले भी बता चुकी हूँ. लो लेवल जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, असेंबली और मशीन लैंग्वेज में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स. But high level language is that type of language which is very easy to understand by the user, which is interactive. Okay, so Python was developed by Guido van Rossum during 1985 to 1991. Okay, जैसे हमारी फर्दर और लैंग्वेजेस हैं C++, पर्ल, उनमें क्या है बेटा, ऑलरेडी सोर्स कोड होते हैं उनमें, ठीक है. उसी तरीके से पाइथन का भी एक खुद का सोर्स कोड है, खुद की लाइब्रेरी है. सो यूज़र को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती जब वो कोड इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, और किसके अंडर है वो? GPL के अंडर, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर. गॉट इट. ये कुछ हिस्ट्री है और डेफिनेशन है पाइथन की. और फर्दर हम इस वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड कुछ नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम हम रीड करेंगे. What are the advantages? As I said in previous slide, Python is interpreted. Interpreted means at run time by the interpreter. Python is processed at run time by the interpreter. We do not need to compile your program before executing it. Means when we are typing or when we are given coding to our program, after completion
no need to compile, we just run our program as similar to Perl or PHP. Okay, next, Python is interactive. You can actually sit at a Python prompt and interact with the interpreter directly to write your programs. What is prompt? Prompt is a symbol which is used in Python, so it is interact with the interpreter directly. Okay, next, Python is object oriented. It supports object oriented styles or techniques of programming that encapsulates code within objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स बेटा जो इसके पैराडिगम्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस होते हैं? द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कंटेन डेटा. जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डेटा कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स. ओके, एंड द कोड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर. जो डेटा होता है वो फील्ड्स की फॉर्म में होता है एंड जो कोड होता है वो हमारा प्रोसीजर्स की फॉर्म में होता है. गॉट इट? जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. नेक्स्ट इज पाइथन इज़ अ बिगिनर लैंग्वेज. मीन्स ये ज़्यादा बहुत बड़ी या बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है. ओके, सो पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर द बिगिनर लेवल प्रोग्रामर्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू www ब्राउज़र. इट मीन्स अगर किसी को कोई गेम डेवलप करना है या किसी को ब्राउज़र टेक्स्ट मतलब सिंपल टेक्स्ट से लेके ब्राउज़र बनाने तक पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सिंपल टेक्स्ट मतलब अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट हमें टाइप करना है तो भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें ब्राउज़र बनाना है, कोई वेब पेज बनाना है तो भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. पाइथन इज स्लो एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक C, C++, C#, PHP, Perl. As compared to those languages, it is little bit slow. Okay, Python is not good for mobile development. If you want to develop any Android operating system, so it will very hectic or it is very difficult to develop. Not good. Okay, we can develop, but it is not good for that. Next, not possible to build 3D graphic games using Python. Nowadays, various types of games are developed. Okay, so in Python language, it is difficult. It is not possible to develop 3D graphic games. Okay, so these are advantages and disadvantages. Now, essential of Python program. यहाँ से बेटा आपकी प्रोग्रामिंग, थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है. जब हम प्रोग्राम, जैसे आप इस स्लाइड में देखिए, एक प्रोग्राम है. क्या प्रोग्राम है? 2 नंबर को ऐड करवाना है. ओके, सो यहाँ पे हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे. ओके, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. इस प्रोग्राम में सारी चीज़ें हैं. सो ये प्रोग्राम आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या है इसमें. जैसे num1 है. num1 क्या है? एक वेरिएबल, जो मैं आगे आपको क्लियर डिटेल में बताऊंगी. num1 इज़ अ वेरिएबल. इक्वल टू इज ऑपरेटर. 1.5 इज वैल्यू. ये एक वेरिएबल की वैल्यू है. ओके, सेम num2 इज अनदर वेरिएबल विच कंटेन वैल्यू 6.3. ये जो आप सिंबल देख रहे हो, हैशटैग आप जो देख रहे हो, ऐड 2 नंबर्स, जो ये हैश है ये कमेंट है. ओके, ऐड 2 नंबर्स मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया है. जब आप आउटपुट देखोगे तो ये जो कमेंट है ये आपको नहीं दिखाई देगा. ओके, सम इक्वल टू फ्लॉट num1 प्लस फ्लॉट num2. अब देखो बेटा, सम जो है वो हमारा क्या है? एक ऑपरेटर. ओके, ऐड करने के लिए. इक्वल टू फ्लॉट हमने क्यों लिया है यहाँ पे? ये एक डेटा टाइप है बेटा. जो आपकी जो वैल्यू है 1.5, ये फ्लॉटिंग में आते हैं. डेसिमल वैल्यूज़ जो भी आती हैं वो हमारी फ्लॉट नंबर्स में आती हैं. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू ना लेके नॉर्मल वैल्यू लेती तो मैं यहाँ पे क्या लेती? इंटीजर, INT. ओके, सो ये जो सम इक्वल टू फ्लॉट num1 प्लस फ्लॉट num2 है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर ऊपर के जो 2 नंबर है उनको ऐड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, डिस्प्ले द सम. जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो कहाँ पे होगा? प्रिंट में हमें मिलेगा. ओके, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट द सम ऑफ 0 and 1 and 2 फॉर्मेट num1 num2 सम. ये क्या है? एक सिनेरियो. ये आप सीधा भी लिख सकते हो कि प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट द सम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल टू एंड देन प्रिंट सम. ओके,
फिर जो नीचे आप देख रहे हो लास्ट में, द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 7.8, ये आपका आउटपुट आता है उन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद, ये फॉर्मूला पुट करने के बाद। ओके, सो इस प्रोग्राम में जो जो आपने देखा है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, कमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ओके, ये सब हम थ्योरी में करेंगे। सबसे पहले क्या है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। वहाँ पर जैसे 6 + 2 और 3 × 7 एक्सेट्रा, ये सब क्या है एक्सप्रेशन। इस प्रोग्राम में एक्सप्रेशन क्या है, num = 1.5, और क्या है एक्सप्रेशन, sum = float num1 + float num2। These are expressions. Statements. A statement is a programming instructions that starts an action. कोई भी एक्शन, अब नंबर्स मैंने दे दिए हैं ऐड करने के लिए, अब उसको इम्प्लीमेंट जो करेगा वो कहाँ से होगा, स्टेटमेंट से, जो हमने प्रिंट कमांड यूज़ की है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट द सम ऑफ 0 and 1 and 2 and so on, वो क्या है हमारा स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट्स। अ कमेंट इज अ लाइन दैट इज रिटर्न इन द प्रोग्राम फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट इट डज नॉट अफेक्ट आउटकम ऑफ द कोड। जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि #add 2 numbers, #display the sum, these are comments। ओके, जो आपको आउटपुट में नहीं शो होंगे। नीचे आप आउटपुट देख रहे हो, सिर्फ नॉर्मल आपका जो आंसर है वो आ गया है, आउटपुट में नहीं आया है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशंस। ब्लॉक एंड इंडेंटेशंस इन पाइथन, इंडेंटेशन इज यूज टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हमारा ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या है। ब्लॉक इसमें ज़रूरत नहीं है बेटा कि आपको अभी फर्दर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, हम फ्लो चार्ट्स देखेंगे या हम कंडीशंस देखेंगे, तब हमारे ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन आप देख सकते हो कि पहले मैंने वेरिएबल्स और वैल्यूज़ दी हैं, फिर गैप आया है थोड़ा, फिर हमने फॉर्मूला पुट किया है, फिर गैप आया है, फिर हमारा प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट में हो गया है। तो ये क्या है इंडेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन। A function is a code that has the name and it can be reused by specific its name in the program। क्या है ये कोड है जो हम जिसका एक नाम होता है खुद का, जो हम फर्दर प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अ बेसिक प्रोग्राम जो 2 नंबर्स को ऐड किया है, और इसमें हमारे जो भी एसेंशियल्स हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। गॉट इट? In next video, I will explain identifiers, keywords, tokens, all these, and further operators, data types, condition, and loops. Okay, so stay connected. Thank you.